اور 13 سورہ ہے اس کو الرعد کہتے ہیں، جس کو انگلش میں the chapter of thunder بھی کہتے ہیں، اور chapter of thunder اس کی ورس 27 میں دیکھیں گے بڑی سچائی سے لکھا ہے، اور لکھا ہے جیسا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، سورہ الرعد جو ہے سورہ 13 اس کی 27 میں آپ نے لکھا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہ ہوئی، یعنی کہ محمد پر نشانی نازل کیوں نہ ہوئی اللہ کی طرف سے. تو لکھا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے. سو اللہ پہلے گمراہ کرتا ہے پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ نمبر 16 ہم جائیں گے اور اس کی 93 آیت میں دیکھیں گے. حالانکہ یہ جو اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فنی بات ہے کہ اس میں یہ جو سورہ النحل ہے یعنی کہ یہ مکی کی صورت ہے دبی، اور اس کی 93 آیت. حالانکہ یہ اسکرین شاٹ ہے اس میں فنی بات ہے کہ آن لائن یہاں پر 94 آیت ہے. یہ لکھا ہے کہ اگر خدا یعنی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو تم اس عمل کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ بعد میں سمجھاتا ہے. پھر میرے ساتھ دیکھیں سورۃ البقرہ جو کہ دوسری سورت ہے، اس کی 7ویں آیت میں جائیں گے. سورۃ البقرہ ہے یہ دوسری سورت ہے، اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے کانوں اور دلوں کو بند کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا انجسٹ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ان کی آنکھیں بند کر دی، ان پر پردہ لگایا، ان پر جو ہے وہ ان کو بند کر دیا، ان کے دلوں پر پردہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور بعد میں ان کو سزا بھی دے رہی ہیں. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ انسان جو کہ سزا پائے گا وہ تو کہے گا نہیں کہ آپ مجھے کیسے سزا دے سکتے ہیں، یہ آپ نے تو میری آنکھیں بند کی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا ہوگا کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جو 16واں نام ہے وہ ہے the subduer یا قہار، قہر کرنے والا. حالانکہ بائبل میں یہوہ کا ذکر آتا ہے کہ یہوہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. وہ قہر نہیں کرتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس نے دنیا سے ایسی محبت کر لی یہوہ نے کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا یعنی یہوشوا، اور اللہ نے دنیا سے ایسی نفرت کی کہ اس نے قہر کیا، وہ قہار ہو گیا. سیمی سیمسن چوڑے کا داماد ابراہیم قادری. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. تو ہم دیکھتے ہیں جو اس نے حوالہ جات دیے اس کو میں اپنی ترتیب سے بیان کروں گا. اس میں سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. سورہ دوسری سورہ مبارکہ ہے اور آیت ہے اس کی 7ویں آیت ہے. تو یہ میں 6ٹھی آیت سے پڑھ رہا ہوں. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کا حال بیان کیا ہے. کن کے؟ کفار کے، کافروں کے دل کا حال بیان کیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ وہ ایمان نہ لائے، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ وہ نجات نہ پائے، ایمان نہ لائے. وجہ یہ ہے کہ وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں جیسے آج کے کرسچن ہیں. تو اب آگے آتے ہیں 7ویں آیت. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب جو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. کن کے کرتوتوں کی وجہ سے؟ کرسچنوں کے. کرسچنوں سے مراد کفار سے. اب میں جب لفظ کرسچن کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کافر. یہ میری اصطلاح ہے، کافر کی جو ہے وہ اس کا کرسچن میں نے کر دی ہے. انگلش میں ہم کافر کو کرسچن کہہ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں. یعنی کہ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ منافقین کا ذکر ہے. فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں. یہ میں نے یعنی کہ دوسری سورہ مبارکہ کی آیت 6 سے 9 آیت تک پڑھا ہے، اور اس سے کلیئر ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ پہلے گمراہ کرے اس کے بعد وہ نجات دے یا اس کو سنوار دے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت گمراہ یا انہی پر مہر لگاتا ہے جو کرسچن ہے، جو اس حالت میں ہے کہ جو ضد میں پڑے ہوئے ہیں، بے غیرتی میں پڑے ہوئے ہیں. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل میں، یعنی کہ
16वीं सूरह मुबारका है और आयत है इसकी 93। और अल्लाह का अहद पूरा करो जब कौल बांधो और कस्में मजबूत करके ना तोड़ो, और तुम अल्लाह को अपने ऊपर जामन कर चुके हो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम जानता है। और उस औरत की तरह ना हो जिसने अपना सूत मजबूती के बाद रेजा रेजा करके तोड़ दिया। अपनी कस्में आपस में एक बेअसल बहाना बनाते हो, कहीं एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से ज्यादा ना हो। अल्लाह तो इससे तुम्हें आजमाता है और जरूर तुम पर साफ का जाहिर कर देगा क्यामत के दिन जिस बात में झगड़ते थे। और अल्लाह चाहता तो अल्लाह चाहता तो तुमको एक ही उम्मत करता, लेकिन अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे। अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और राह देता है जिसे चाहे। और जरूर तुमसे तुम्हारे काम पूछे जाएंगे, तुम्हारे काम पूछे जाएंगे। इससे क्या मुराद है कि अल्लाह जो है जिसे चाहे गुमराह करता है। इसने आपने पिछली आयत जो मैंने पीछे से पढ़ रहा हूं 91 से, ये असल में लोगों का अपना रुझान होता है। क्या होता है? रुझान होता है, लोगों के अपने करतूत होते हैं, लोगों के यानी कि अवाम जिनको ये गुमराही का या दूसरे मामलात होते हैं, वो होते हैं कि वो उनके अपने ही मामलात होते हैं जिसकी वजह से अब वो जिद में पड़ जाते हैं। तो बाजू का अब मिसाल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले में पाकिस्तान में है या दुनिया में कहीं भी मुसलमान बसते हैं, जहां पे भी मुसलमानों की थोड़ी सी तादाद होती है, वो अपनी मस्जिद बना लेते हैं। क्या करते हैं? मस्जिद बना लेते हैं। और मस्जिद में क्या होता है? 5 टाइम अजान होती है, 5 औकात अजान होती है। इसका मतलब है अल्लाह अकबर, बुलावा मिल रहा, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह, हय्या अल सलाह, बुलाया जा रहा है। अब कितने परसेंट जो मुसलमान है, कुफार की बात नहीं हो रही, मुसलमानों की बात हो रही, कितने परसेंट मुसलमान हैं जो मस्जिद में जा रहे हैं? आप बात समझे? अब वहां पे बुलावा तो आ गया, अब किसी को आके किसी ने यानी कि किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या किसी और शख्सियत ने, किसी और जात ने आके रोका तो नहीं कि वो मस्जिद में जा रहा है, उसको किसी ने आके मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ा है या मस्जिद के रास्ते में खड़ा है, वो उसको रोके, ऐसा नहीं है। मगर क्या है कि लोग अपने तौर पर ही नहीं जाते। इसका मतलब है लोग खुद बुराई की तरफ आते हैं, हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह की तरफ नहीं आते। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना कर दिया, नहीं, उन्होंने खुद अपना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को क्या पैदा किया है? आजाद पैदा किया है। आजाद पैदा किया है, यह नहीं है कि उसको कोई ऐसा पत्थर पैदा किया है या जमादात पैदा किया है या हैवान पैदा किया। इंसान को आजाद मर्जी दे के पैदा किया है, क्योंकि अगर आजाद मर्जी ना देता तो फिर उसका क़यामत वाले दिन हिसाब किताब होता ही नहीं। अब इंसान को अगर आजाद मर्जी दी गई है तो इसका मतलब है कि हिसाब किताब है। अगर आजाद मर्जी ना हो यानी कि इंसान अपने अच्छे भले का, अच्छे का और बुरे का जिम्मेदार खुद ना हो, तो इसका मतलब है कि फिर क़यामत वाले दिन जो हिसाब किताब है या जन्नत दोज़ख का मामला है, यह सिर्फ सारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि इंसान को आजाद मर्जी दी गई है, अब वो क्या करता है? अच्छाई की तरफ आता है या बुराई की तरफ आता है। हाँ, एक चीज होती है कि जब वो बुराई की तरफ जाए और वो ज्यादा बुराई ही में घुसता जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान कि मैं उसको गुमराह कर देता हूं या उसके दिल पर मोहर लगा देता हूं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो अपनी बुराई में पुख्ता हो चुका, अब इसका वापसी की उम्मीद नहीं है। और फिर मजीद हम आगे चलते हैं। सूरह रद यानी कि 13वीं सूरह मुबारका है और आयत है इसकी 25 यानी कि 25वीं आयत है। और वो जो अल्लाह का अहद इसके पक्के होने के बाद तोड़ते और जिसके जोड़ने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया उसे कता करते और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उनका हिस्सा लानत ही है और इनका नसीबा बुरा घर। अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क कुशादा और तंग करता है, और काफिर दुनिया की जिंदगी पर इतरा गए, और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबिल नहीं मगर कुछ दिन बरत लेना। और काफिर कहते हैं, यानी कि ये आयत है, यानी कि 13वीं सूरह की ये 27वीं आयत है जो इसने कोड की है। मैं पीछे से आगे से जो मैंने शुरू में कहा कि आप ये कुलिया याद रखें कि जब भी कोई क्रिश्चियन काफिर जो है आपके सामने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे कुरान पाक की किसी आयत से, तो सिर्फ ये काम करना, कोई
जरूरत नहीं है आपको अपना बड़ी बड़ी वो तफासिर देखने की। कुरान पाक की अगली और उसी आयत की अगली और पिछली आयत देख ले, आपको समझ आ जाएगी कि ये कंफ्यूज कैसे कर रहा है। और काफिर कहते हैं कि इन पर कोई निशानी इनके रब की तरफ से क्यों ना उतरी। तुम फरमाओ, बेशक अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और अपनी राह से देता है, राह उसे देता है और अपनी राह उसे देता है जो उसकी तरफ रज्जू लाए। यानी कि अल्लाह किसको गुमराह करता है? जो बुराई की तरफ खुद जाता है। ये नहीं कि वो नेकी की तरफ आ रहा है और अल्लाह पाक उसे नाउजुबिल्लाह उसे मना कर रहा है। ये बाइबल में यही कुछ है कि जो नेकी की तरफ आ रहा है और बाइबल का खुदा या यहावा और यावा पागल है ना, क्या करता है? जो नेकी की तरफ आएंगे वो उनको बुराई की तरफ धकेलेगा। अभी थोड़ी देर बाद हम बाइबल की तरफ आएंगे, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। यहां पर हम जो इसी आयत को देखते हैं, और अपनी राह से देता है जो उसकी तरफ रज्जू लाए, वो जो ईमान लाए और इनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं। सुन लो, अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। यह कतई नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले गुमराह करे फिर उनको हिदायत दे, ऐसा कतई ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कतई गुमराह नहीं करता। ये जो कहना है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुमराह किया, वो ये यही है कि जो गुमराही की तरफ दौड़ता हुआ जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे क्या करेगा? ढील दे देगा। क्या करेगा? ढील दे देगा। उसको पकड़ेगा नहीं, ढील दे देगा। जाओ भाई जाओ। वो गुमराही में घुसता जाएगा, आखिर क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। और जो अच्छाई की तरफ आना चाहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए क्या करेगा? रास्ते खुले कर देगा। क्या करेगा? रास्ते खोल देगा। उसके दिल को, उसके दिमाग को अपनी तरफ माइल कर लेगा। यह कतई नहीं है कि जो आना चाहे उसको धक्के दिए जाए और उसको बाद में, यह बिल्कुल बकवास है। इस्तिस्ना बाब 29 और इसकी आयत 1, 2, 3, 4। इस्राएलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया, उसकी ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हुरैब में बांधा था। सो मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आंखों के सामने मुल्क मिस्र में फरआउन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क से किया, देखा है। इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े कृष्ण तूने अपनी आंखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे, और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए। यह है बाइबल के खुदा का स्टैंडर्ड, यानी कि यहोवा का स्टैंडर्ड, कि जो जिनको वो वहां से निकाल लाया, कहां से? मिस्र से निकाल लाया। जाहिर है अब उन्होंने माना यहोवा को, खुदा माना यहोवा को, हालांकि उनको पता नहीं था कि ये यहोवा जो है यहोवा है, पागल है। तो उनको उसको क्या माना? खुदा माना। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें, अब उनको ले आया बियाबान में, धक्के दिला रहा है, जलील कर रहा है, और फिर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें दिल ही नहीं दिए, वो समझने वाले दिल और आंखें ही नहीं दी, वो दिमाग ही नहीं दिए। ये किसका काम है? ये यहोवा का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकी खुदा, हकीकी परवरदिगार का कतई नहीं है। फिर हम मजीद आगे चलते हैं। यसाया बाब 6 आयत 8 और इसकी आयत 8 और इसकी हम देखेंगे 11 आयत तक। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे, और इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखें बंद कर दे, ताना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाएं। तब मैंने कहा, आए खुदा, ये कब तक? उसने जवाब दिया, जब तक बस्तियां वीरान ना हो और कोई बसने वाला ना रहे और घर बेचिराग ना हो और जमीन सरासर उजाड़ ना हो। ये इस बयान में इसने, यानी कि ये जो एतराज किया इसमें यह भी इसने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हार है, जबकि यहोवा जो है वो बड़ा, वो क्या कहते हैं, बड़ा रहम दिल है, हलीम है, वो बसाना चाहता है, ये बाइबल इसका मुंह चढ़ा रही है, बाइबल इसको जूते मार रही है। मैं इसको क्या कहूंगा? मत्ती बाब 13 और इसकी 10 आयत से शुरू करते हैं, 10 तक 14 आयत। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई।
क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके हक में यशाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, जो मैं पहले पढ़ चुका हूं यशाया के मामलात में। तो अब ये देखें, ये है स्टैंडर्ड। अल्लाह रब्बुल इज्जत का स्टैंडर्ड क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किनको गुमराह करता है? वही जो गुमराही की दौड़ दौड़ते हैं, गुमराही की दौड़ दौड़ते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्रीचरों से यानी कि मुबल्लिगीन के कहने पर वो वापस फलाह की तरफ नहीं आते, रोशनी की तरफ नहीं आते, नूर की तरफ नहीं आते। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है? ये नहीं कि उनको गुमराह कर देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी कि लफ्ज गुमराह ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको क्या करता है? ढील देता है, ढील देता है, यानी कि ढील देता है, उनकी रस्सियां आजाद कर देता है, जाओ गुमराही में भागो। अब वो गुमराही में भागते हैं। मैंने पहले भी अर्ज की कि इंसान को आजाद पैदा किया गया, आजाद मर्जी दी गई है, इसलिए इससे हिसाब किताब है। जानवर को आजाद मर्जी नहीं दी गई, पत्थर को आजाद मर्जी नहीं दी गई, इसलिए उसमें से उसका हिसाब किताब नहीं होगा। तो अब यहां पर यह देखें, और बाइबल की जो आयात मैंने आपके सामने जो पढ़ी है, बाइबल के अंधेरे आपके सामने रखे, उसमें वो लोग अब जो मिस्र से निकल आए इस बनी इसराइली, उनके बारे में भी कह दिया कि इनके दिलों को मैंने जो है वो इनको वो दिल ही नहीं दिया, इनकी वो आंखें नहीं दी जो समझ पाए, जो समझ सकें। फिर उसके बाद यशाया ने भी कह, यशाया वाले में आपने देख लिया जो मैंने हवाला दिया कि इनके दिलों को चरबा दे, किस यहां तक कि मैं शहरों को वीरान कर दूं, इनको उजाड़ दूं। फिर क्या है ये? आप देखें कि ये जो बकवास करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, वो बाइबल से साबित हो रही है, बाइबल के यहोवा यावे पर साबित हो रही है। कहां से साबित हो रही है? बाइबल के यहोवा पर। अब जो फिर यसू की यहोशुआ की आपने गुफ्तगू सुन ली, वो कहता है वो लोग उसके पास अपना कामकाज छोड़ के आए हुए हैं, सारा कुछ छोड़ के आए हुए हैं कि भैया आप हमें तालीम दो, हमें हदायत दो, हमें निजात दो। तो वो क्या कह रहा है कि इनको निजात नहीं दी गई, इनको वो कान ही नहीं दिए गए जो सब सुन सके, इनको वो अकल ही नहीं दी गई, जो दिल ही नहीं दिए गए जो समझ सके। अब जो लोग सारा कुछ छोड़ छाड़ के आगे ये फिर भी कोई निजात ना देना चाहे, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि वो ये काम जो करता है वो कौन है? इब्लीस। इसका मतलब क्या हुआ? वाज़े हुआ कि यहोवा जो है वो क्या है? इब्लीस है। बाइबल मुकद्दस का पदी वाला खुदा, जो यिर्मयाह की किताब उसका 42वां बाब 10वीं आयत, तो जो जब खुदा अपने इंसाफ के तकाजे को पूरा करता है तो वो उसके बदी के जुमरे में आता है। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4वां बाब उसकी 4थी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है। यीशु मसीह जो है ये शैतानी जाल है, शैतानी शिकंजा है, और ये शैतानी हरबा है लोगों को शिकार करने का। जब ये कहा जाता है कि शैतानी हरबा है, शिकंजा है, जाल है, तो ये सदाकत पे मबनी है। क्यों ये कहा गया? इसलिए कि ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। मसीहों के लिए यीशु मसीह खतरे से भरा हुआ जाल है, शिकंजा है। ये ऐसा पिंजरा है जिसमें आपकी मौत यकीनी है। अबदी मौत की बात कर रहा हूं मैं। हलाकत यकीनी है, जहन्नम यकीनी है, हमेशा की आग यकीनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है।
उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नो मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर इमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व इमदाद 0305 8902412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए लगेगा।